Hello dear student. Till now you know how to name an angle and how to measure them with the help of protractor. So already you know if any angle is given and the mouth is open less, then the angle will be less. Simply, very simple way I'm telling this. Like if the mouth of this angle is open little less as compared to this one, then obviously the value will be less. Suppose this will be 40. I'm supposing, not exactly. This is 40, so this will be 60. Yeah, more than 40 simply. Okay. It's mean if the angle's mouth is open less, then the angle's value will be less. And if the angle's mouth is open more, then the angle's value will be more. बड़ा एंगल होगा ये, और ये जो इसका माउथ कम ओपन है ये छोटा एंगल होगा. Okay. Now just see the example what is given here. You need to compare it. The first angle, this one is what? 75 degree. Let's see. In this, first one figure, angle ABC. Angle ABC is what? 75 degree. 75 degree. And angle PQR, this one. Angle PQR is what? 70 degree. See why we are saying angle PQR, because Q is the middle. Q is in the middle, and this angle we always measure. If any angle's value is given, to that values, if I'm telling, yeah, we are expressing this, then it will be always in the middle. You know now it. So that's why this Q is in the middle between P and R. Now just see the other example. By looking the figure only we can say that angle ABC is more than angle PQR. In next, angle XYZ. Angle XYZ. Okay. So Y is here in the middle. So what is the value of Y? 60 degree. Okay. And angle STU. STU is also 60 degree. Angle STU is what? 60 degree. So it is equal. So what you will say? Angle XYZ is equal to angle STU. Okay, this you will write. What is given next exercise? 11.2. Measure the following angles using a protractor. Protractor तो you all know ना, चांदा जो होता है. With the help of that protractor you will measure these angles ना. कैसे measure करना है? You know, the protractor's middle part will be on the vertex. इस vertex पे इसका middle part रहेगा, and the base of protector will be along with this ray. इस ray के according चलेगा वो. थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए. इधर your value will come different. जो बेस होगा आपका प्रोटेक्टर का, ऐसे आप रखोगे यहाँ पे, एंड मिडिल पार्ट कहाँ रखोगे? इस वर्टेक्स पे रखोगे, राइट. एंड यू विल मेजर ऑल द एंगल्स एंड यू विल राइट द वैल्यू. कैसे वैल्यू लिखोगे? क्योंकि आप ये जो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बी है ना, एंगल बी. तो आप कैसे लिखोगे? इफ सपोज प्रोटेक्टर से आपने मेजर किया, आपने कुछ पाया उसका वैल्यू 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी आपने पाया, हाउ यू विल राइट? आप लिखोगे, अगर आप ए को लिख रहे हो तो आप कैसे लिखोगे? इरेज कर लेने दीजिए मुझे. Okay, if you are writing A, then you will write angle COD is equal to what? जो वैल्यू आएगा O को मेजर करने के बाद, जो वैल्यू आपका मिलेगा ना, वो लिखोगे आप यहाँ पे. सपोज आपने 30 डिग्री आपको मिला, तो आप 30 डिग्री यहाँ पे लिखोगे. सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट यू विल राइट? एंगल ABC. ठीक है, या आप CBA भी लिख सकते हो. आपको कंडीशन क्या है कि आपको ये जो बी है ना, दिस शुड बी इन द मिडल. इसको आपको मिड में रखना है हमेशा, राइट. तो एंगल CBA इज इक्वल टू जो भी आपने मेजर किया उसका वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे. या एंगल ABC भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू दिस. दोनों सेम हो, क्योंकि बी मिडिल में है ना, तो इसका मतलब हम बी का वैल्यू बता रहे हैं. मेजर करने में प्रोटेक्टर से आप मेजर करो, देखो कितना आ रहा है, उसके बाद ऐसे लिखो एंगल BAC या ABC कितना आ रहा है, ऐसे करके. और ये वाला एंगल तो आपको पता है ना, दिस विल कम 90 डिग्री, बिकॉज ये एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर वर्टिकल लाइन स्टैंड है, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा. तो आप इसको मेजर कर लो और लिखो क्या? एंगल PQR is equal to what? 90 degree. Like this you will write. Okay. Come to the next question. You can solve all the question. और जहाँ पे आपको ड्रा करना है ना, वो भी बहुत ईजी है.
In this question, draw the following angles using a protector. Also, you can easily make the angles. You can find out the angles. This is the protector. Suppose ये आपका चांदा है, प्रोटेक्टर है. तो प्रोटेक्टर में क्या होता है, एक मिडिल पार्ट होता है ना, दिस यू नो. ये 90 डिग्री हमेशा होता है. जब भी आपको एंगल मेजर कर रहे हो ना आप, तो हमेशा देखोगे कि 60 डिग्री अगर दिया है तो 60 डिग्री किधर दिया है. अगर आप 60 बना रहे हो तो ये 90 यहाँ पे आपको पता है. जो 60 होगा वो 90 से कम होना चाहिए. ठीक है, 90 यहाँ पे 80 होगा, यहाँ पे 70 होगा, यहाँ पे 60 होगा, फिर 50 होगा, 40 होगा, ऐसे करके सारे एंगल गए होंगे. तो अब देखो कि आपका ये बेस है, इस बेस से 60 कहाँ गया है, वो वाला एंगल ऐसे करके मेजर कर लो यहाँ पे. ठीक है, मतलब ऐसे ड्रा करो लाइन, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, पॉइंट करके बेस बनाओ और ड्रा कर दो यहाँ पे ऐसे. राइट. एंड सपोज कि आप 100 डिग्री बना रहे हो, 100 का आपको मेजर करना है, बनाना है, तो आप क्या करोगे. आपका अगेन प्रोटेक्टर आपने रखा है ऐसे. 100 आपको पता है कि 90 से ज़्यादा होगा. ठीक है, तो इतना माउथ तो 90 के लिए ही ओपन होगा. इसका माउथ आपका बेस ये है, अगर ये इतना बेस है तो इतना तो 90 के लिए माउथ ओपन होगा. अगर 100 है तो 100 से 10 90 से ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा. 90 से ज़्यादा कितना होगा, 10 डिग्री का. तो आप इतना करके इसका माउथ ओपन करोगे, ये मतलब 90 से ज़्यादा इसका माउथ ओपन होना चाहिए. ये हमेशा 90 से कंपेयर कर लोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेक्टर में दो तरह के वैल्यू दिए होते हैं. हर दोनों जगह ना आपका ये 10 20 30 50 ऐसे करके दिया होता है, और 100 के बाद वाला वैल्यू भी दिया होता है. तो आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सा मेजर करें. तो अब देखो कि इसका जो आपका एंगल बन रहा है ना, वो कितना उसका माउथ ओपन है. अगर कम माउथ ओपन है तो 90 से कम है, तो 90 से कम वाला वैल्यू यूज करो आप. अगर इसका माउथ इस स्ट्रेट वाले लाइन से ज़्यादा ओपन है तो इसका मतलब ये 90 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ज़्यादा वाला वैल्यू यूज कर लोगे आप. ठीक है, इजी है, आप अच्छे से मेजर कर सकते हो. एक दो क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट जल्दी आपको समझ में आ जाएगा. ओके, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन. नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि आपको इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंड पॉइंट ऑन द एंगल दैट यू मस्ट नो ना. तो आप अगर एक एंगल बना रहे हो ऐसे, तो इस एंगल के अंदर वाली पार्ट क्या है. मैंने बोला ना, इसका माउथ जितना ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग एंगल का साइज बढ़ेगा या घटेगा. राइट. अगर इस एंगल में आप देखोगे इसका माउथ कम ओपन हुआ है, तो माउथ इसका है कहाँ तक पहले. इसके इसका माउथ यहाँ ओपन है, इसके अंदर वाली क्या क्या चीज़ें आएंगी. अगर मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, वट एवर दी अल्फ़ाबेट आई एम राइटिंग, दिस इज इन साइड द माउथ ना, ये अंदर है ना, तो इसको हम इंटीरियर बोलेंगे. जो अंदर है वो इंटीरियर होगा. इंटीरियर कहाँ लिखा है, अब उसको मैच करा लो. ये इंटीरियर है, इसके अंदर है तो इंटीरियर है. और अगर इस एंगल के बाहर मैं कुछ लिख रहा हूँ, सपोज आई एम राइटिंग समथिंग आउटसाइड ऑफ दिस एंगल ना, तो मैं क्यू लिख दिया, आर लिख दिया, एस लिख दिया, ये मैंने कहाँ लिखा, इस एंगल के बाहर लिखा हुआ है सारा, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. देखो ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे है ना. इसका मतलब जो भी चीज़ें हम एंगल के किसी एंगल के अंदर करते हैं या लिखते हैं उसको हम इंटीरियर बोलते हैं. जो एंगल के बाहर लिखते हैं उसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं. अगर मैंने किसी पॉइंट को उस एंगल के ऊपर ही मेजर लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, दिख रहा है पॉइंट आपको. अगर मैं इसी लाइन पे कहीं कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सपोज मैंने टी लिख दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ऑन दी एंगल है, मतलब एंगल के ऊपर मैंने ये चीज़ बनाया हुआ है. तो आपको तीन चीज़ें बताया गया. इंटीरियर मतलब एंगल के माउथ के अंदर जो चीज़ें होंगी, जैसे ए बी सी यहाँ पे लिखा गया है, इंटीरियर है. जो एंगल के बाहर वाली चीज़ें होती है, जैसे एक्स क्यू आर, ये सारा कुछ भी लिखा गया है, दिस इज एक्सटीरियर. और पॉइंट ऑन दी एंगल मतलब उसी लाइन के ऊपर मैंने कोई पॉइंट लिख दिया है, वो पॉइंट ऑन दी एंगल हो जाएगा. राइट. थ्री थिंग्स आप याद रखो हमेशा. पहला, और एक चीज़ और होता है कि आपको एक्यूट एंगल पता होना चाहिए. मतलब एक्यूट एंगल, अगर कोई भी एंगल 90 से कम है, 90 से कम कोई एंगल बना हुआ है, सपोज 40 डिग्री है, 30 है, 60 है, 80 है, 90 से जो भी एंगल कम होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा. मतलब न्यून कोड हिंदी में. जो 90 से ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे. 90 से अगर कोई एंगल ज़्यादा है, जैसे 90 से ज़्यादा क्या होगा, 100 हो गया, ठीक है, 110 हो गया, 120 हो गया. तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम जो भी एंगल होगा ना, वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा. और अगर कोई एंगल केवल एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा. अब इसके बारे में समझ में आएगा, आपको पढ़ोगे आगे कि क्या होता है. अगर मैं कोई एंगल ऐसे राइट एंगल बना दूं तो ये 90 डिग्री होता है, इसको राइट एंगल बोलते हैं. अगर मैंने 90 से ज़्यादा कोई एंगल बना दिया, ठीक है, अगर 90 से ज़्यादा बना दिया तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया. अगर 90 से कम कोई एंगल बीच में ऐसे बना दिया तो 90 से कम है ये, तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट. ओके.
तो आप इसको ध्यान रखो कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल क्या होता है। उसके बाद हम स्ट्रेट एंगल भी समझेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, जैसा इसका नाम ही है स्ट्रेट एंगल, तो अगर स्ट्रेट लाइन कोई सीधी लाइन है तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ओके, और इसका वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री। अगर कोई सीधी लाइन है तो 180 डिग्री होता है वो। ओके, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, नेम दी फॉलोइंग angles in two different ways, always write the vertex, always write their vertex। ओके, तो वर्टेक्स आपको लिखना है। आपको पता है कि जब भी कोई एंगल, सपोज आपने पहला एंगल लिखा तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए क्यू बी, यही तो लिखोगे एंगल ए क्यू बी। और दूसरा वे क्या हो सकता है, एंगल बी, अब बी को पहले लिख दो और क्यू तो बीच में रहेगा ही रहेगा, फिर उसके बाद ए लिख दो। तो दो तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, इन सारे एंगल्स को आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन अलोंग साइड। इस एंगल में कितने इस साइड में जो दिया गया है ना, यहाँ पे कितने एंगल्स आपको बताना है। तो अब इसलिए दो एंगल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, कैसे देखो, ये दोनों को, तीनों क्वेश्चन आप कर लोगे, ऑल थ्री क्वेश्चन यू कैन डू इट इजिली, दीज थ्री। ये सेकेंड क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि ये जो फिगर दिया हुआ है ना, इसमें क्या है, एक एंगल तो आपका पी क्यू आर हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर हो जाएगा। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्यू, ये क्या है, ओ है क्या, ओके ओ को, ओके दिस इज व्हाट एंगल पी ओ आर है ना। तो फर्स्ट वन क्या है, एंगल पी ओ, सॉरी क्यू मैंने लिख दिया फिर से, ओ एन आर, एंगल पी ओ आर है पहला वाला एंगल। और दूसरा एंगल क्या है, एंगल क्यू ओ आर। देखो जो एंगल जहाँ पे बनता है, जो वर्टेक्स होता है उसको हम हर बार कॉमन लेते हैं, हमेशा लेना पड़ेगा आपको। एंगल क्यू और बीच में क्या है, ओ और आर। तो ये दो एंगल इसमें हो जाएंगे। इस वाले एंगल जो ओ वाला पहला वाला है ये ओ, इसका माउथ ज़्यादा ओपन है, देखो इसका माउथ कितना ओपन है, इतना ओपन है। और जो दूसरा वाला एंगल है, एंगल क्यू ओ आर जो है, क्यू ओ आर, उसका माउथ देखो कम ओपन, देखो यहीं से है ना, तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली कम होगा। दो एंगल आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक तो 90 से कम मिल रहा है, ये 90 से कम होगा क्योंकि 90 डिग्री आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ, तो ऑब्वियसली ये 90 से कम लग रहा है ये वाला एंगल, तो 90 से कम होगा तो इसकी वैल्यू कम आएगी। और ये दूसरा देखो 90 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से ये इसका बेस तो दोनों का सेम है ना, बेस दोनों का सेम है, देखो यहाँ से बेस दोनों सेम है। और ये वाला एंगल कितना है, इतना पूरा है ये एंगल, कौन सा, एंगल पी ओ आर बड़ा होगा एंगल क्यू ओ आर से, राइट। तो ऐसे आप लिख दोगे, दो एंगल होगा। नेम देम, डू ऑल एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यस, दोनों एंगल को कॉमन वर्टेक्स है ऑब्वियसली, यस बोलोगे आप। नेम इट, तो नेम आप क्या कर लोगे, ये लिख दोगे, एंगल पी ओ आर और एंगल क्यू ओ आर। चलो आप सारे क्वेश्चन इसमें से कर लो अभी।